اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آپ سن رہے ہیں داستان سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 9۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انہوں نے فقریہ کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ کوئی اچھے رتبے والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرتار کے لحاظ سے پتھر ہے۔ ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لیے پھرتے، انہیں سلطان کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھیں کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارا ایوبی بری نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا۔ وہ مجھے بحری جہاز میں لائے تھے اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ہمارے جسم چچوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھیں۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیمے میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا، اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا۔ شراب میں بدمست تھا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جوں ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ ہو تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے کہا لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جیسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے قصوروں کا بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشل کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے سیاہی مائل بھورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لے لیتا ہوں۔ نہیں۔ لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے؟ ہم تو اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں، ایک تاجر نے کہا۔ ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہوئی۔ فخر المصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ جسے کرسٹوفر نے توڑا، اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری؟ فخر نے کہا، میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے؟
जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया, फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने कहा। सूडानियों ने सलाहुद्दीन अयूबी की अमारात और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आज़ाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बताया था कि वो मिस्र से चले जाएंगे क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। इसलिए अयूबी ने मिस्रियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहाँ ले आया। उसने तुम लोगों को शराफत और नेकी का झांसा दिया और खुद ऐश कर रहा है। क्या तुम्हें माले गनीमत मिला? अगर तुम्हें मिला भी तो सोने चांदी के 2 टुकड़े मिल जाएंगे। सलेबियों के जहाज़ों से बेबहा खजाना सुल्तान अयूबी के हाथ आया है। वो सब रात के अंधेरे में सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर काहिरा रवाना कर दिया गया है, जहां से दमिश्क और बगदाद चला जाएगा। सूडानी लश्कर को सुल्तान निहत्ता करके गुलामों में बदल देना चाहता है। फिर अरब से फौज आएगी और तुम मिस्री भी गुलाम हो जाओगे। इस ईसाई की हर एक बात फखर अल मिस्री के दिल में उतरती जा रही थी। असर बातों का नहीं बल्कि मोबी के हुस्न और हशीश का था। ईसाइयों ने यह हरबा हसन बिन सबाह के हशीशैन से सीखा था। मोबी को बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि एक मिस्री इसके ताक़ुब में इसके दाम में आ जाएगा। उन्हें मालूम हो गया कि फ़खर मिस्र की ज़ुबान के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं जानता। मोबी ने अपने 5 साथियों को सुनाना शुरू कर दिया कि राबिन ज़ख्मी होने का बहाना करके ज़ख्मियों के खेमे में पड़ा है और उसने कहा है कि नाजी से मिलकर मालूम करो कि उसने बगावत क्यों नहीं की या उसने अकब से सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला क्यों नहीं किया, और ये भी मालूम करो कि उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। वो बातें कर रही थी तो फ़खर ने पूछा, ये क्या कह रही है? ये कह रही है, एक ने जवाब दिया, अगर ये शख्स यानी तुम सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज में ना होते तो ये तुम्हारे साथ शादी कर लेती। ये मुसलमान होने को भी तैयार है, लेकिन कहती है कि अब उसे मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। ये कसम तुम्हारी खातिर तख्त और ताज कुर्बान कर देता, अगर शर्त यही है कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी की दी हुई तलवार फेंक दूं। तो ये लो। उसने कमरबंद से तलवार खोली और नयाम समेत लड़की के कदमों में रख दी। कहा, मैं अब से अयूबी का सिपाही और कमानदार नहीं हूं, मगर एक शर्त और भी है। लड़की ने कहा, मैं अपना मजहब तुम्हारी खातिर तर्क कर देती हूँ, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी से इंतकाम ज़रूर लूँगी। क्या इसे मेरे हाथ से कत्ल करवाना चाहती हो? फ़खर ने पूछा। लड़की ने अपने आदमियों की तरफ देखा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर क्रिस्टोफर ने कहा, एक सलाहुद्दीन अयूबी ना रहा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक और सुल्तान आ जाएगा, वो भी ऐसा ही होगा। मिस्रियों को आखिर गुलाम ही होना पड़ेगा। तुम एक काम करो, सूडानियों के सालार नाजी के पास पहुंचो और ये लड़की इसके सामने करके इसे बताओ कि सलाहुद्दीन अयूबी असल में क्या है और इसके इरादे क्या हैं। इन लोगों को ये इल्म तो था कि नाजी का सलीबियों के साथ राब्ता है और मोबी इसके साथ बात करेगी, लेकिन इन्हें ये इल्म नहीं था कि नाजी और इसके मुअत्तमिद सालार खुफिया तरीके से मरवाए जा चुके हैं। उस तक लड़की को ही जाना था, इसका अकेले जाना मुमकिन नहीं था। इत्तफाक से फ़खर अल मिस्री मिल गया, लिहाजा इसको इस्तेमाल करने का फ़ैसला हो गया। ये आदमी चूँकि सुल्तान अयूबी की नज़र में आ गए थे, इसलिए इसकी नज़र में रहना चाहते थे। उसके अलावा उन्होंने मोबी से सुन लिया था कि उनके शोबे जासूसी और तखरीब कारी का सरबराह रॉबिन इसी कैंप में है और फ़रार होगा, इसलिए वो इससे मदद देने के लिए भी वहाँ मौजूद रहना चाहते थे। उनके इरादे मालूम नहीं क्या थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर चलाया हुआ इनका तीर खता गया तो इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने ले जाया गया था। इनका बहरूब और ड्रामा कामयाब रहा, लेकिन इनका मिशन तबाह हो गया था। लिहाजा वो बदली हुई सूरत हाल और इत्तफाकात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। फ़खर अल मिस्री
हुसन और हशीश के जाल में आ गया था। उसने वापस कैंप में न जाने का फैसला कर लिया था। उसे ये मशवरा दिया गया कि वह लड़की को लेकर रवाना हो जाए। उन लोगों ने इसे अपना एक ऊँट दे दिया, पानी का एक मुश्किज़ा दिया और थैले में खाने का बहुत सारा सामान डाल दिया। उन अशिया में कुछ ऐसी थीं जिनमें हशीश मिली हुई थी। मोबी को इनका इल्म था। फ़खर को एक लंबा चोगा और ताजरों वाली दस्तार पहना दी गई। लड़की ऊँट पर सवार हुई, उसके पीछे फ़खर सवार हो गया और ऊँट चल पड़ा। फ़खर गिरदोपेश से बेखबर था और वह अपने माजी से भी बेखबर हो गया था। सिर्फ ये एहसास इस पर गालिब था कि रोए ज़मीन की हसीन तरीन लड़की उसके कब्ज़े में है, जिसने सुल्तान को ठुकरा कर उसे पसंद किया है। फ़खर ने मोबी को दोनों बाजुओं में लेकर इसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। मोबी ने कहा, तुम ईसाई कमानदारों और अपने सुल्तान की तरह वहशी तो नहीं बनोगे। मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ, जो चाहो करो, मगर मैं फिर तुमसे नफरत करूँगी। कहो तो मैं ऊँट से उतर जाता हूँ। फ़खर ने उसे अपने बाजुओं से निकाल कर कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझे दिल से चाहती हो या महज मजबूरी के आलम में मेरी पनाह ली है। पनाह तो मैं उन ताजरों की भी ले सकती थी, मोबी ने जवाब दिया, लेकिन तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि तुम्हारी खातिर मैंने अपना मज़हब भी छोड़ दिया। इसने जज्बाती बातें करके फ़खर के एहसास पर कब्जा कर लिया और रात गुजरती चली गई। सफ़र कमोबेश 5 दिनों का था, लेकिन फ़खर अल-मिस्री आम रास्तों से हटकर जा रहा था क्योंकि वह बघोड़ा फौजी था। मोबी को नींद आने लगी। उसने सर पीछे फ़खर के सीने पर रख दिया और गहरी नींद सो गई। ऊँट चलता रहा, फ़खर जागता रहा। सलाहुद्दीन अयूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारग हुआ ही था कि दरबान ने इत्तला दी कि अली बिन सुफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। उसके मुंह से अली बिन सुफियान के सलाम के जवाब से पहले ही ये अल्फाज निकले, उधर की क्या खबर है? अभी तक खैरियत है, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मगर सूडानी लश्कर में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। मैंने इस लश्कर में अपने जो मुखबिर छोड़े थे, इनकी इत्तला से पता चलता है कि इनके किसी एक भी कमानदार ने क़यादत संभाल ली तो बगावत हो जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी इसे अपने ख़ैमे में ले गया। अली बिन सुफियान कह रहा था, नाजी और इसके सरकर्ता सलारों को तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो मिस्री फ़ौज के ख़िलाफ़ सूडानियों में नफ़रत का जो जहर फैला गए हैं, इसका असर ज़र्रा भर भी कम नहीं हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सलारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबिरों की ज़ुबानी ये खबर मशहूर करा दी है कि उनके सलार बहरा रूम के महाज पर गए हैं, मगर अमीर मोहतरम, मुझे शक होता है कि सूडानियों में शक को शुबहात पाए जाते हैं, जैसे उन्हें इल्म हो गया है कि उनके सलारों को कैद कर लिया गया है और मार भी दिया गया है। अगर बगावत हो गई तो मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो इसे दबा सकेंगे? सुल्तान अयूबी ने पूछा, क्या वो 50,000 तजुर्बाकार फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है। मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सूडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं उनका बंदोबस्त कर आया हूँ। मैंने आली मकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज़ रफ्तार कासिद भेज दिए हैं। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फ़िज़ा पैदा हो रही है और हमने जो फ़ौज तैयार की है वो थोड़ी है और इसमें से आधी फ़ौज महाज पर है। मुतवक्का बगावत को दबाने के लिए हमें कमक भेजी जाए। मुझे उधर से कमक की उम्मीद कम है। सुल्तान अयूबी ने कहा, परसों एक कासिद खबर लाया था कि जंगी ने फ़रंगों पर हमला कर दिया था। ये हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फ़रंगों के उमरा फ़ौजी कायदीन बहरा रूम में इत्तलेबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फ़रंगों की कुछ फ़ौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारे सूडानी लश्कर की पुष्टपनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने इनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबे को एक ही बार में बर्बाद कर दिया और शाह फ़रंग के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने सलेबियों से कुछ रकूम भी वसूल की है। सलाहुद्दीन अयूबी खेमे के अंदर टहलने लगा। जज्बाती लहजे में बोला, सुल्तान जंगी के कासद की जुबानी वहाँ के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। क्या आप सलेबी उधर यलगार करेंगे? अली बिन सुफियान ने पूछा। मुझे सलेबियों की यलगार की जर्रा भर भी परवाह नहीं, सुल्तान अयूबी ने जवाब दिया। परेशानी ये है कि कुफ्फार की यलगार को रोकने वाले शराब के मटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के कले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत के जुल्फों ने उन्हें बाजंजीर कर दिया है। अली, चचा असदुद्दीन शेर को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंदा होते। मैदान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के मुहासरे में 3 महीने रहा हूँ। मुझे शेर को हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, रज़ाए इलाही का कायल रहना और इस्लाम का अलम बुलंद रखना। मैं शेर कोह की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरक फौज के खिलाफ भी लड़ा हूँ। सिकंदरिया में मुहासरे में रहा हूँ। शिकस्त मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बददिल होते जा रहे थे। मैंने किस तरह उनके हौसले और जज्बे तरोताज़ा रखे, ये मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। दाआन का चचा शेर कोह ने हमला आवर होकर मुहासरा तोड़ा। तुम ये कहानी अच्छी तरह जानते हो। ईमान फरोशों ने कफ्फार के साथ मिलकर हमारे लिए कैसे तूफान खड़े किए, मगर मैं घबराया नहीं, दिल नहीं छोड़ा। मुझे सब कुछ याद है सुल्तान, अली बिन सुफियान ने कहा। उस कदर मार का आराइयों और कत्लो गारत के बाद तवक्का थी कि मिस्री राह रास्त पर आ जाएं, मगर एक गद्दार मरता है तो एक और इसकी जगह ले लेता है। मेरा मुशाहदा ये है कि गद्दार कमज़ोर खिलाफत की पैदावार होते हैं। अगर फातमी खिलाफत हरम में गुम ना हो जाती तो आज आप सलीबियों से यूरोप में लड़ रहे होते, मगर हमारे गद्दार भाई उन्हें सल्तनत इस्लामिया से बाहर नहीं जाने दे रहे। जब बादशाह ऐशो इशरत में पड़ जाएं तो रआया में से भी कुछ लोग बादशाही के ख्वाब देखने लगते हैं। वो कुफ्फार की ताकत और मदद हासिल कर लेते हैं। ईमान फरोशी में वो इस कदर अंधे हो जाते हैं कि कुफ्फार के मज़ाइम और अपनी बेटियों की इस्मतों तक को भुला देते हैं। मुझे हमेशा इन्हीं लोगों से डर आता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अल्लाह ना करे इस्लाम का नाम जब भी डूबेगा मुसलमानों के हाथों से डूबेगा। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। ये रुझान बता रहा है कि एक रोज़ मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान होंगे अपनी सरजमीन को अगर इस्लाम कहीं ज़िंदा रहा तो वहाँ मस्जिदें कम और कहपा खाने ज़्यादा होंगे। हमारी बेटियां सलीबियों की तरह बाल खुले छोड़कर बेहया हो जाएंगी। कुफ्फार उन्हें इसी रास्ते पर डाल रहे हैं, बल्कि डाल चुके हैं। अब मिस्र से फिर वही तूफान उठ रहा है। अली, तुम अपने महकमे को और मजबूत कर लो और वसी कर लो। मैंने अपने रफ़ीकों से कह दिया है कि दुश्मन के इलाकों में जाकर शबखून मारने और खबर लाने के लिए तनोमंद और ज़हीन जवानों का इंतखाब करो। सलीबी उस महाज को मजबूत और पुरअसर बना रहे हैं। तुम फौरी तौर पर जासूसी करो, जंग की तैयारी करो। फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि समुंदर से कई एक सलीबी बचकर निकले हैं। उनमें ज़्यादातर ज़ख्मी हैं, और जो ज़ख्मी नहीं वो कई कई दिन समुंदर में डूबने और तैरने की वजह से ज़ख्मियों से बदतर है। उन सब का इलाज मुआलजा हो रहा है। मैंने सबको देखा है, तुम भी इन्हें देख लो और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनसे मालूमात हासिल करो। सुल्तान अयूबी ने दरबान को बुलाकर नाश्ते के लिए कहा और अली बिन सुफियान से कहा, कल कुछ ज़ख्मी और कुछ भली लड़कियां मेरे सामने लाई गई थीं। 6 तो समुंदर से निकले हुए कैदी हैं। उनमें एक पर मुझे शक है कि वो सिपाही नहीं, रुतबे और ओहदे वाला आदमी है। सबसे पहले उससे मिलो। 5 ताजर ईसाई लड़कियों को साथ लाए थे। उसने अली बिन सुफियान को लड़कियों के मुतल्लिक वही कुछ बताया जो ताजरों ने बताया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने लड़कियों को दरअसल हिरासत में लिया है।
लेकिन उन्हें बताया कि मैं उन्हें पनाह में ले रहा हूँ। लड़कियों का ये कहना है कि वो गरीब घरानों की लड़कियाँ हैं, और फिर उनका ये बयान कि उन्हें एक जलते हुए जहाज़ में कश्ती में बिठाकर समुंदर में उतारा गया और कश्ती उन्हें साहल पर ले आई मुझे शक में डाल रहा है। मैंने उन्हें अलग खैमे में रखा है और संतरी खड़ा कर दिया है। तुम नाश्ते के फौरन बाद उस कैदी और उन लड़कियों को देखो। आखिर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, कल दिन के वक्त साहल पर टहलते हुए मुझ पर एक तीर चलाया गया था जो मेरे पाँव के दरमियान रेत में लगा। उसने तीर अली बिन सुफियान को देकर कहा, इलाका चट्टानी था। महाज तलाश और ताक़ुब के लिए बहुत दौड़े, मगर उन्हें कोई तीर अंदाज नजर नहीं आया। उस इलाके से उन्हें ये 5 ताजिर मिले जिन्हें मुहाफ़िज़ मेरे पास ले आए। उन्होंने ये 7 लड़कियां भी मेरे हवाले की और चले गए। और वो चले गए? अली बिन सुफियान ने हैरत से कहा, आपने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी? मुहाफ़िज़ों ने उनके सामान की तलाशी ली थी, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। उनसे ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उन पर शक होता। अली बिन सुफियान तीर को गौर से देखता रहा और बोला, सुल्तान और सुराख रस्सा की नज़र में बड़ा फ़र्क होता है। मैं सबसे पहले उन ताजरों को पकड़ने की कोशिश करूँगा। अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से बाहर निकला तो दरबान ने उसे कहा, ये कमांदार इत्तला लाया है कि कल 7 ईसाई लड़कियां कैद में आई थीं। उनमें से एक लापता है। क्या सुल्तान को इत्तला देना ज़रूरी है? ये कोई अहम वाक़या तो नहीं कि सुल्तान को परेशान किया जाए? अली बिन सुफियान गहरी सोच में पड़ गया। कमांदार जो इत्तला देने आया था उसने अली बिन सुफियान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का लापता हो जाना तो इतना अहम वाक़या नहीं, मगर अहम यह है कि फ़खरुल मिस्री नाम का कमांदार भी रात से लापता है। रात के संतरियों ने बताया कि वो लड़कियों के खेमे तक गया था, वहाँ से ज़ख्मियों के खेमे की तरफ गया और फिर कहीं नज़र नहीं आया। रात वो गश्त पर निकला था। अली बिन सुफियान ने ज़रा सोचकर कहा, यह इत्तला सुल्तान तक अभी ना जाए। रात के उस वक्त के तमाम संतरियों को इकट्ठा करो जब फ़खर गश्त पर निकला था। उसने सुल्तान अय्यूबी के मुहाफ़िज़ दस्ते के कमांदार से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफ़िज़ साहल तक गए थे उन्हें लाओ। वो वहीं थे। चारों सामने आ गए तो अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, कल जहाँ तुमने ताजरों और लड़कियों को देखा था वहाँ फ़ौरन पहुँचो। अगर वो ताजर अभी तक वहीं हैं तो उन्हें हिरासत में ले लो और वहीं मेरा इंतज़ार करो, और अगर जा चुके हों तो फ़ौरन वापस आओ। मुहाफ़िज़ रवाना हो गए तो अली बिन सुफियान लड़कियों के खेमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी थीं और संतरी खड़ा था। अली ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी ज़ुबान में पूछा, 7वीं लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरी के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाए। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम सब हमारी ज़ुबान समझती हो? लड़कियां उसे हैरान सा होकर देखती रहीं। अली उनके चेहरों और डील डोल से शक में पड़ गया। वो लड़कियों के पीछे जाकर खड़ा हुआ और अरबी ज़ुबान में कहा, इन लड़कियों के कपड़े उतार कर नंगा कर दो और 12 वहशी किस्म के सिपाही बुला लाओ। तमाम लड़कियां बिदक कर पीछे को मुड़ी। 2-3 ने बैक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी ज़ुबान बोल रही थी। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते। एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़े। अली बिन सुफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूँगा। तुमने जिस तरह एक धमकी से अरबी ज़ुबान बोलना शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बताओ कि 7वीं लड़की कहाँ है? सब ने लाइल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूँगा। तुमने सुल्तान पर ज़ाहिर किया कि तुम हमारी ज़ुबान नहीं जानती। अब तुम हमारी ज़ुबान हमारी तरह बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? उसने संतरी से कहा, इन्हें खेमे के अंदर बिठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फ़खरुल मिस्री की गश्त के वक्त संतरियों से अली बिन सुफियान ने पूछगछ की। आखिर लड़कियों के खेमे वाले संतरी ने बताया
کہ फखर रात उसे यहाँ खड़ा करके जख्मियों के खेमों की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे इसकी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम, नीचे आओ। संतरी ने उधर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर ना आया। सामने मिट्टी के टीले पर उसे एक आदमी का साया नजर आया और वो साया वहीं गायब हो गया। अली बिन सुफियान फौरन वहाँ गया। ये टीला साहिल के करीब था। इसकी मिट्टी रेतली थी। एक जगह से साफ पता चलता था कि वहाँ कोई ऊपर गया है। वहाँ ज़मीन पर 2 किस्म के पाँव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था। दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। ज़मीन कच्ची और रेतली थी। जनाना निशान जिधर से आया था, अली बिन सुफियान उधर को चल पड़ा। ये निशान उसे उस खेमे तक ले गया जहाँ मोबिन राबिन से मिली थी। उसने खेमे का पर्दा उठाया और अंदर चला गया।